Hello everyone. So this is our second lecture of class 10th science. Okay, we have started with the past part 1. So in the first lecture, we have seen the introduction to chapter 1, that is gravitation. In that particular lecture, we have studied what is meant by gravitation, what is gravitational force. Okay, we have also seen force and motion. Okay, first law of motion we have discussed in the first lecture. Also, we have seen the introduction to a scientist that was about Sir Isaac Newton. Okay, now this is going to be an important lecture because in this lecture we are going to see what is circular motion. We will also see centripetal force. Okay, now this centripetal force is associated to circular motion. We are going to see that. Then Kepler's laws. There are three laws of planetary motion which was given by Johannes Kepler. We are going to study that also. And we will also see one of the most important law. Okay, this is considered to be a most significant law in the world of technology. Okay, this is Newton's universal law of gravitation. So we are going to discuss these points in today's lecture. So first of all, we will see what is meant by a circular motion. A motion of an object or particle performed along the circumference of a circle is called a circular motion. Okay, we know what is motion. मोशन क्या है हमें मालूम है. अगर कोई सा भी ऑब्जेक्ट या पार्टिकल अपना पोजीशन चेंज करता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन, पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जा रहा है सपोज एक पार्टिकल, तो उस पार्टिकल ने क्या परफॉर्म किया है? दैट पार्टिकल हैड परफॉर्म्ड अ मोशन. ओके, उस पार्टिकल ने परफॉर्म क्या किया है? मोशन परफॉर्म किया है. अपना पोजीशन अगर चेंज कर रहा है, इट इज नथिंग बट मोशन. अब सर्कुलर मोशन क्या है कि particle is again changing its position. Suppose this is point A and this is point B. So ऑब्जेक्ट या पार्टिकल ने अपना पोजीशन चेंज किया है, लेकिन उसने जो पाथ ट्रैवल किया है ये पोजीशन चेंज करने के लिए, वो पाथ क्या है? सर्कुलर पाथ है. वो पाथ क्या है? सर्कुलर पाथ है. जो रास्ता उसने चुना है ये मोशन परफॉर्म करने के लिए, वो रास्ता क्या है? इट इज अ सर्कुलर ट्रैक और सर्कुलर पाथ. ओके, सो इसलिए कोई सा भी मोशन जो सर्कल के सरकमफ्रेंस के हिसाब से जो पाथ होगा उस पर अगर परफॉर्म हुआ है, सर्कुलर पाथ पे परफॉर्म हुआ है, तो उस मोशन को हम क्या बोलेंगे? सर्कुलर मोशन बोलेंगे. सो यू हैव टू नो द डेफिनेशन, दैट इज मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट और पार्टिकल performed along the circumference of a circle is called as circular motion. ओके, अब ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है, ये फोर्स सर्कुलर मोशन के ऊपर ही डिपेंड करता है. ओके, यू विल ऑब्जर्व दिस फोर्स इन अ सर्कुलर मोशन ओनली. अब देखो, व्हाट इज सेंट्रीपिटल फोर्स? अ फोर्स एक्टिंग ऑन एनी ऑब्जेक्ट moving along a circle and it is directed towards the center of the circle is called centripetal force. Suppose कोई सा भी object, suppose यहाँ पे we consider an electron. Okay, we know that electron performs a circular motion around the nucleus. Electron क्या करता है? Circular motion perform करता है nucleus के around. Okay, so we consider an electron over here now, विच इज परफॉर्मिंग अ सर्कुलर मोशन. तो ये इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है या फिर कंसिडर एन ऑब्जेक्ट जो मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन, तो ये मोशन परफॉर्म करते हुए जो फोर्स इस पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन के ऊपर एक्ट होने वाला है, जो फोर्स उसको लगने वाला है ये मोशन परफॉर्म करने के लिए, उस फोर्स को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल
centripetal force which is denoted by capital C suffix capital F. Okay, so this is the denotion of centripetal force. ये क्या है हमारा centripetal force है. Now this centripetal force will have some magnitude, कुछ उसका magnitude होगा. Okay, this force can be 1 Newton, 2 Newton or 40 Newton. Okay, we know the unit of force is nothing but Newton. Okay, मैग्नीट्यूड होगा, उसके साथ साथ इसका डायरेक्शन भी होगा, बिकॉज फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी. फोर्स क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है. वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? ऐसी फिजिकल क्वांटिटी जिसका मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है. ओके, सो फोर्स का डायरेक्शन भी होता है. तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होता है मालूम है आप लोगों को? सेंट्रीपिटल फोर्स का डायरेक्शन होता है टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ अ सर्कल, मतलब इस डायरेक्शन में. सो ये जो फोर्स है इसका डायरेक्शन किस तरफ होगा? सर्कल के सेंटर की तरफ होगा. ओके, सपोज एक रोड है इस तरीके से. ओके, यहां से गाड़ी जा रही है. नाउ दिस कार इज ट्रैवलिंग और उसको टर्न लेना है अभी. ओके, सो ये पॉइंट से ये पॉइंट तक गाड़ी ने कौन से टाइप का मोशन परफॉर्म किया है? सर्कुलर मोशन परफॉर्म किया ऑब्वियसली. तो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए गाड़ी के ऊपर जो फोर्स एक्ट होगा वो फोर्स कौन सा होगा? दैट फोर्स इज गोइंग टू बी अ सेंट्रीपिटल फोर्स. ये फोर्स कौन सा होने वाला है? सेंट्रीपिटल फोर्स होगा. ये मोशन परफॉर्म करने के लिए जो फोर्स कार को लगने वाला है वो फोर्स कौन सा है? सेंट्रीपिटल फोर्स है. और इस फोर्स का डायरेक्शन किस तरफ होगा? टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ सर्कल, दैट इज अलोंग द रेडियस. रेडियस के साथ में सेंटर की तरफ होगा ये. ओके, सो दिस इज नथिंग बट सेंट्रीपिटल फोर्स. फोर्स है तो ऑब्वियसली वेलोसिटी की भी बात आती है. ओके, नाउ व्हाट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी इन दिस केस? सो वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है दैट इज गोइंग टू बी टेंजेंशियल टू दैट पर्टिकुलर मोशन और पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट. अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, इसके फोर्स का डायरेक्शन हम लोग को मिल गया. ओके, ये फोर्स का डायरेक्शन है. वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इस पर्टिकुलर सर्कल के ऊपर, यहाँ पे इस पॉइंट के ऊपर अगर हम लोग टेंजेंट ड्रॉ करेंगे. अभी टेंजेंट क्या है हम लोग का हो चुका है ब्रिज कोर्स में मैथमेटिक्स के. ओके, इट इज अ लाइन दैट पासेस फ्रॉम अ सिंगल पॉइंट ऑफ अ सर्कल. सिर्फ एक पॉइंट से पास होती है वो लाइन. ओके, विच इज परपेंडिकुलर टू रेडियस. ओके, दैट लाइन इज कॉल्ड टेंजेंट. तो हम लोग ने टेंजेंट ड्रॉ कर लिया. तो इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या होगा? इट इज गोइंग टू बी टेंजेंशियल. सो या तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन में होगी या फिर इस डायरेक्शन में होगी. आया समझ में? इसका मैं आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ. पत्थर लो छोटा सा, उसको धागे से बांधो और उस धागे को घुमाओ जोर से. क्या होगा? आप जितने स्पीड से उसको घुमाओगे और अगर छोड़ देते आप अपने हाथ से, वो स्ट्रिंग को रिलीज करते हैं, तो वो जो स्टोन है दूर तक फेंका जाएगा. वो जिस डायरेक्शन में फेंका जाएगा वो डायरेक्शन कौन सा होगा मालूम है आपको? दैट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी. कौन सा डायरेक्शन होगा वो? वेलोसिटी का डायरेक्शन होगा. ओके, इसका एक और सिंपल एग्जांपल. घर में फैन तो सबके हैं. फैन के ब्लेड के ऊपर आप कॉइन रखो और फैन चालू करो तो क्या होगा? वो कॉइन भी जो है वो स्लिप होगा और एक सर्टन डायरेक्शन की तरफ फेंक दिया जाएगा. सो वो डायरेक्शन कौन सा होने वाला है? इट इज गोइंग टू बी द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी. ओके, और जो फोर्स एक्ट हुआ होगा उस पॉइंट के ऊपर वो कौन सा फोर्स होगा? दैट इज गोइंग टू बी सेंट्रीपिटल फोर्स. ओके, so this was about circular motion and centripetal force. Now अगर हम लोग मून को कंसिडर करते हैं, मून.
ओके, और ये हमारा अर्थ है। नाउ निगलेक्ट माय सर्कल, मैंने सर्कल ड्रॉ किया उसको निगलेक्ट करो आप लोग। नाउ कंसिडर दिस इज अर्थ एंड दिस इज मून। ओके, सो हम सबको मालूम है कि मून जो है वो अर्थ के अराउंड क्या हो रहा है, रिवॉल्व कर रहा है। क्या कर रहा है वो, रिवॉल्व कर रहा है अर्थ के अराउंड। ओके, मून। सो मून कौन से टाइप का मोशन परफॉर्म कर रहा है, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब मून को भी ज़रूरत है फोर्स की। ओके, जब हम लोग कोई मोशन परफॉर्म करते हैं तो हमें फोर्स मिलता है, हमारे मसल से फोर्स मिलता है। ओके ओके, हम किसी चीज़ को ढकलते हैं तो हम लोग खुद का अप्लाइड फोर्स प्रोवाइड कर रहे हैं उसको। गाड़ी चल रही है, फ्यूल एनर्जी पे चल रही है, फ्रिक्शन फोर्स आ गया, अलग अलग फोर्सेस आते हैं, मैकेनिकल फोर्स है। लेकिन अब ये मून सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। अब मून कोई मशीन तो नहीं है, लेकिन वो मोशन परफॉर्म कर रहा है, तो उसको भी फोर्स की ज़रूरत है मोशन परफॉर्म करने के लिए। सिंपल बेसिक लॉ है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है, एनी ऑब्जेक्ट विल रिक्वायर्ड अ फोर्स टू परफॉर्म अ मोशन। सो इसको, मून को ये मोशन परफॉर्म करने के लिए जो फोर्स है, सेंट्रीपिटल फोर्स, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स आ गया। ये सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से मिल रहा है उसको, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स से मिल रहा है। किससे मिल रहा है वो, अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स का उसके ऊपर रिएक्शन हो रहा है और फिर वो ये सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहे हैं। ओके, सो दिस इज एन important फोर्स, centripetal force in terms of circular motion. Now I will see three laws of planetary motion, जिसे हम लोग कैपलर्स लॉज बोलते हैं, क्योंकि जोहानस कैपलर नाम के एक साइंटिस्ट ने ये तीन लॉज दिया है हमें। ओके, आपको मालूम है 16th सेंचुरी के पहले या फिर गैलीलियो के टाइम के पहले, आपको मालूम होगा गैलीलियो गैलीली, द मैन हु मेड द टेलीस्कोप, इन्वेंटेड द टेलीस्कोप। ओके, सो गैलीलियो गैलीली के पहले जितने भी साइंटिस्ट थे वो एस्ट्रोनॉमी की स्टडी करते थे। मतलब कि ये जो एस्ट्रोलॉजिकल ऑब्जेक्ट्स है, सन है, मून है, डिफरेंट स्टार्स है, प्लैनेट्स है, इसकी स्टडी जस्ट बाय ऑब्जर्विंग द स्काई, स्काई को ऑब्जर्व करके ही सिर्फ स्टडी करते थे, बताते, अपने इंटरप्रिटेशंस देते थे। ओके, तो उस समय तक केपलर ने भी अलग अलग साइंटिस्ट के लॉज को स्टडी किया कि उन्होंने, उनका क्या मानना है प्लैनेट्स को लेकर के, प्लैनेटरी ऑब्जेक्ट्स को लेकर के। और उसने ऑब्जर्व किया, ओके, स्काई को, स्टार्स को विद द नेक्ड आई। और वो ऑब्जर्वेशन करने के बाद जोहानस केपलर ने तीन लॉज हमें दिए हैं, केपलर्स फर्स्ट लॉ, केपलर्स सेकेंड लॉ एंड केपलर्स थर्ड लॉ। ओके, फर्स्ट लॉ को हम लोग लॉ ऑफ ऑर्बिट भी बोलते हैं। ओके, लॉ ऑफ ऑर्बिट। सेकेंड लॉ को हम लोग लॉ ऑफ इक्वल एरियाज बोल सकते हैं। क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ इक्वल एरियाज। और थर्ड लॉ को लॉ ऑफ एवरेज और लॉ ऑफ मीन डिस्टेंस भी कहा जा सकता है। ओके, नाउ वन बाय वन वी आर गोइंग टू स्टडी दिस थ्री लॉ। फर्स्ट लॉ का स्टेटमेंट क्या है, देखो, स्टेटमेंट जो दिया हुआ है एज इट इज आपको याद होना चाहिए, इट इज इंपॉर्टेंट। ओके, और आपको समझ में आना चाहिए। द ऑर्बिट ऑफ अ प्लैनेट इज एन इलिप्स विद द सन एट वन ऑफ द फोकाई। ओके, सो केपलर का क्या मानना है कि जो प्लैनेट है जो रिवॉल्व कर रहा है सन के अराउंड, वो क्या, उसका जो ऑर्बिट है, मतलब जो पाथ है उसका, वो क्या है, एलिप्स है। ओके, इट इज़ नॉट अ सर्कुलर पाथ। हम क्या कंसिडर कर रहे हैं कि जो अर्थ सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है वो सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व कर रहा है। सर्कुलर पाथ में प्लैनेट रिवॉल्व नहीं कर रहे हैं, वो किस पाथ में रिवॉल्व कर रहे हैं, इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं। कौन से ऑर्बिट में, इलिप्टिकल ऑर्बिट में। इलिप्टिकल भी एक ज्योमेट्रिकल फिगर है। इलिप्स क्या है, what is ellipse, it is a geometrical figure, okay, which have two focal points, there are two focal points। यहाँ पे एक focal point हमने कंसिडर किया है, यहाँ पे दूसरा focal point कंसिडर किया है। ओके, सो ellipse के पास दो focal points होते हैं।
ओके, सो केपलर का क्या मानना है कि जो प्लैनेट है वो इलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं सन के अराउंड, और सन क्या है, उस इलिप्स के किसी एक फोकाई के ऊपर सिचुएटेड है। तो यहाँ पे सन क्या है, सिचुएटेड है। ओके, एज यू कैन सी द सन इज सिचुएटेड एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ दिस ellipse. So this is the first law of Kepler, that is law of orbit. क्या आई होप आपको समझ में आया होगा। केपलर्स सेकेंड लॉ क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। मतलब सपोज यहाँ पर हमारा प्लैनेट है एट पोजीशन ए। ओके, 5 मिनट के बाद हमारा प्लैनेट पोजीशन बी तक पहुंचा। कहाँ तक पहुंचा, पोजीशन बी तक। अब अगर हम लोग सन से पोजीशन ए तक एक लाइन बनाते हैं और फिर सन से हम लोग पोजीशन बी तक एक लाइन बनाएंगे, तो हमें क्या मिल गया, एक सेक्टर मिल गया। क्या मिला है हम लोग को, सेक्टर। और ये सेक्टर का अगर हम लोग एरिया फाइंड करेंगे, सपोज ये सेक्टर का एरिया आता है, सपोज इट इज गोइंग टू बी टू मच बिग बट आई एम सेइंग सपोज 25 किलोमीटर स्क्वायर। कितना एरिया बोला मैंने, 25 किलोमीटर स्क्वायर सपोज इसका एरिया आया। सपोज, अज्यूम, अजम्पशन है हमारा ये। सो पोजीशन ए से पोजीशन बी में 5 मिनट में जो अर्थ ने डिस्टेंस ट्रैवल किया है, वो डिस्टेंस को कंसिडर करते हुए हमने जो एरिया फाइंड किया है वो कितना है, 25 किलोमीटर स्क्वायर। नाउ वी विल कंसिडर दैट अर्थ इज एट द पोजीशन सी। अर्थ क्या है, पोजीशन सी पर है, और वापस 5 मिनट के बाद अर्थ पोजीशन डी पे पहुंच गया, और हमने फिर ये एरिया फाइंड किया। सो अकॉर्डिंग टू केपलर्स second law, this area is also going to be 25 किलोमीटर स्क्वायर। तो केपलर का क्या बोलना है कि जब कोई सा भी प्लैनेट सन के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, और अगर हम इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में उसने जो एरिया स्वीप किया है, जो डिस्टेंस स्वीप किया है, जो डिस्टेंस कवर किया है, उसको कंसिडर करते हुए अगर एरिया फाइंड करेंगे तो वो एरिया क्या होने वाला है, सेम आने वाला है, इफ़ वी कंसिडर द सेम इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, यहाँ पे भी 5 मिनट हमने कंसिडर किया था, यहाँ पे भी 5 मिनट। सिमिलरली फॉर द थर्ड केस ऑल्सो वी आर गोइंग टू कंसिडर टाइम एज 5 मिनट। ओके, सो केपलर का सेकंड लॉ क्या है, द लाइन ज्वाइनिंग द प्लैनेट एंड द सन स्वीप्स इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। सो एरिया 1 इज इक्वल टू एरिया 2 इज इक्वल टू एरिया 3 if this distance traveled by earth is in same time, that is 5 minutes. Okay, we can consider time as 5 minutes, 6 minutes, 7 minutes, but that time interval of time must be equal in every case. Okay, so then we will get equal areas. So this is law of equal areas. Now third law, that is Kepler's third law that we are going to study now. What is the statement? The square of its period of revolution around the sun is directly proportional to the cube of the mean distance of a planet from the sun. तो केपलर का क्या बोलना है, सपोज हम लोग पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को टी कंसिडर करते हैं, कैपिटल टी। ओके, और प्लैनेट और सन के बीच के डिस्टेंस को, प्लैनेट सपोज यहाँ पे हमारा प्लैनेट है। ओके, सो प्लैनेट और सन के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम लोग क्या कंसिडर करेंगे, आर। नाउ दिस डिस्टेंस इज मीन डिस्टेंस। मीन मतलब क्या, एवरेज ऑफ ऑल द डिस्टेंसेस। ये डिस्टेंस का, ये डिस्टेंस का, ये सब डिस्टेंसेस का एवरेज। सो दिस इज द मीन डिस्टेंस। ओके, हम लोग क्या कंसिडर कर रहे हैं, स्मॉल आर। सो केपलर क्या बोल रहा है कि अगर हम लोग पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन का स्क्वायर लेंगे,
और मीन डिस्टेंस का क्यूब लेंगे, ये दोनों भी क्या है, एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब क्या, अगर हमारा पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन इंक्रीज होता है, इसका मतलब क्या है कि जो डिस्टेंस है हमारा वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। डिस्टेंस भी क्या होगा हमारा, इंक्रीज होगा। ओके, सो दिस इज द थर्ड लॉ ऑफ कैप्लर्स। ओके, थर्ड लॉ ऑफ प्लैनेटरी मोशन क्या है कि अगर पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन को हम लोग इंक्रीज करेंगे, सो जो मीन डिस्टेंस है प्लैनेट का सन से वो भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि दोनों भी क्या है, एक दूसरे को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ओके, दिस इज द सिंबल ऑफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, अल्फा। अगर मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन निकालनी है तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक अ कांस्टेंट। सो हम लोग क्या लेंगे, टी स्क्वायर इक्वल टू कांस्टेंट के इंटू आर क्यूब। अब ये आर क्यूब को मैं, आर क्यूब आर एच एस में मल्टीप्लाई हो रहा है, एल एच एस में लेके जाऊंगा तो क्या हो जाएगा, वो डिवाइड हो जाएगा। सो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इक्वल टू क्या मिला मेरे को, कांस्टेंट मिला। सो फॉर एनी केस इफ यू टेक द डिवीजन of these two terms, t square by r cube, you are going to get a constant. Okay, constant value for all the cases. So this is the Kepler's third law. सर आइजैक न्यूटन ने यही डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट के लॉस को स्टडी करके खुद का ऑब्जर्वेशन की मदद से उसने ऑब्जर्व किया, कुछ एक्सपेरिमेंट्स परफॉर्म किया, और उसके बाद एक लॉ हमें दिया है, और उस लॉ को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। व्हाट इज दैट लॉ, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, दिस इज एन important law, okay, in terms of technology, in the world of technology, this is one of the most important law, universal law of gravitation. Now what is the statement of this law? Every object in the universe attracts every other object with a definite force. Okay, this force is directly proportional to the product of the masses of the two objects and inversely proportional to the square of the distance between them. Okay, सो न्यूटन क्या बोल रहा है, यूनिवर्स में कोई से भी दो ऑब्जेक्ट को आप कंसिडर करो। यहाँ पे हमने ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2 कंसिडर किया है, किसी भी दो ऑब्जेक्ट को कंसिडर करो, वो दोनों ऑब्जेक्ट एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, और ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, ओके, वो एक डेफिनाइट फोर्स होगा। ओके, उसका क्या बोल रहा है कि दो कोई से भी ऑब्जेक्ट हो यूनिवर्स के, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे विद अ फोर्स, और ये जो फोर्स है वो क्या होने वाला है, इट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। मतलब दोनों भी ऑब्जेक्ट का जो मास है, वजन है, उसका प्रोडक्ट, उसका हम लोग मल्टीप्लिकेशन लेंगे, दोनों के मास का प्रोडक्ट जो है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है and inversely proportional to the square of the distance between them। दोनों भी ऑब्जेक्ट के बीच का जो डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर से वो क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। क्या होगा, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। ओके, सो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे हम लोग ने दो ऑब्जेक्ट कंसिडर किया, ऑब्जेक्ट 1 एंड ऑब्जेक्ट 2। ऑब्जेक्ट 1 का मास क्या है, m1 है। ऑब्जेक्ट 2 का मास क्या हम लोग ने कंसिडर किए, m2 कंसिडर किए। ओके, सो m1 और m2। सो न्यूटन का क्या बोलना है कि फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सो फोर्स हम लोग ने ले लिया। ओके, दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मासेस। प्रोडक्ट मतलब क्या, मल्टीप्लीकेशन। सो m1 इंटू m2। ओके, दिस इज द फर्स्ट कंडीशन कि फोर्स जो है वो दोनों भी ऑब्जेक्ट के मास का प्रोडक्ट का क्या होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा दोनों से, उससे। सो वो हम लोग ने कंसिडर किया। उसके बाद इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। सो दोनों ऑब्जेक्ट के बीच का डिस्टेंस हम लोग ने क्या लिया है,
स्मॉल डी लिया है। अब ये जो फोर्स है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो 1 अपॉन, सॉरी, इट इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। सो इसका मतलब क्या है, वी विल टेक प्रोपोर्शनैलिटी साइन एम, इन्वर्सली है इसका मतलब 1 अपॉन क्या आ जाएगा यहाँ पे, डी स्क्वायर, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस। सो डिस्टेंस जो है उसका स्क्वायर लेना है हम लोग को। सो एफ इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 अपॉन, सॉरी, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू डी स्क्वायर। सो यहाँ पे एफ है, यहाँ पे एफ है, अल्फा अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनलिटी की साइन, एम वन इंटू एम टू, और यहाँ पे क्या है 1 अपॉन डी स्क्वायर। इसको अगर हम लोग कंबाइन करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एफ इज प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन डी स्क्वायर। ओके, इसका मतलब f जो है वो प्रोडक्ट ऑफ मासेस से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और डिस्टेंस स्क्वायर से क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ओके, अब मुझे ये प्रोपोर्शनैलिटी की साइन निकालनी है, तो ऑब्वियसली आई एम गोइंग टू टेक अ कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट यहाँ पे क्या है, कैपिटल जी। कैपिटल जी को हम लोग क्या बोलते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ये क्या है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। ओके, रिमेंबर दिस इज कैपिटल जी, इट इज नॉट स्मॉल जी। इन टर्म्स ऑफ ग्रेविटेशन देयर इज वन मोर जी, दैट इज स्मॉल जी, और ये स्मॉल जी क्या है हमारा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये क्या है हमारा 9.81 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लेकिन कैपिटल जी क्या है हमारा, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, और उसका वैल्यू क्या है 6.673 इंटू 10⁻⁻11। ओके, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो ऐसा यूनिट क्या है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और उसकी वैल्यू क्या है 6.673 इंटू 10⁻11। ओके, ये हमें याद रखना है। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का जो वैल्यू है वो आपको 100% याद होना चाहिए। इसके ऊपर क्वेश्चन शॉर्ट श्योर आता ही आता है। सो याद रखना है हमें, जी इज इक्वल्स टू 6.673 इंटू 10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। ओके, सो दिस इज अबाउट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ओके, सो हमें ये फॉर्मूला याद रहना चाहिए, कैपिटल जी का वैल्यू याद रहना चाहिए क्या है। मैं आपको बता दूं कि जो फील्ड ऑफ टेक्नोलॉजी है, साइंस जो डेवलप हुआ है, वो अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है इसमें। जैसे यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को डिस्कवर करने वाले और फाइंड करने वाले, उसको मैनिपुलेट करने वाले साइंटिस्ट थे सर आइजैक न्यूटन। लेकिन ये जो कैपिटल जी का वैल्यू है, इसको एक्सपेरिमेंटली फाइंड किया था हेनरी कैवेंडिश ने। किसने फाइंड किया था, हेनरी कैवेंडिश ने। सो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने, अलग अलग जो साइंटिस्ट है उन्होंने दूसरे साइंटिस्ट के लॉ को स्टडी किया, क्या उसमें कमियां थी उसको सुधारने की कोशिश की है, समझ में आया। और हर एक लॉ मिल के ये पूरा टेक्नोलॉजी जो है वो तैयार हुआ है, और जिसका अभी हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ओके, एंड दिस इज इंक्रीजिंग, यू विल observe that every day new technology is being developed, okay, and with the help of all these laws. So this is important law. I hope you have understand what is universal law of gravitation. Okay, your homework for today's lecture is going to be, you have to write down these 3 laws of Kepler's and you have to learn it, and you have to also write this universal law of gravitation, the formula, and this value, and you have to learn all these concepts. Okay, now we will meet in our next lecture. Until then,